In previous class, we discussed about importance and scope of chemistry, and as well as the branches of the chemistry, discipline of the chemistry. Now, I am going to introduce you some brief descriptions about matter. So, a brief description about matter. Matter. You are familiar with this word. Previously, in class 9th standard, you learned that matter and the composition of the matter. Here just I will give the brief introduction, means it is a kind of revision you will get from here. So if I ask you what is the definition of the matter, then what will be the definition of matter? Can you tell me? Divyansh? 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 Divyansh, am I audible to you? Yes, sir. Okay. So now anything that occupies, we define the matter in such a way, anything that occupies space possesses mass anything that occupies space possesses mass. This is the basic definition. I am going to add some more quantities here, that is can exert pressure may offer resistance and the presence of which can be felt by which can be felt by any one or more any one or more of our five senses such as touch, taste, sight, hearing and smell. Sight, hearing and smell. We can smell the matter, we can see the matter, we can taste the matter, we can touch the matter, and we can get an idea about the matter by hearing. So we can feel the matter by our senses, and the basic criteria to said to be particles, thus name
is a matter or not, that is these two criteria. Occupy space and possess mass, that is the basic criteria. Every matter has a definite mass. Every matter possesses a definite mass. So, for example, book, fan, uh, pen. Now, if I ask you, uh, smell, so can we classify the matter? Smell, smell. So smell is not a matter. Love, it is not a matter. Uh, height, height, it is not a matter, right? If I will tell smell of flower, then it will be considered a matter. So now next point is classification of matter. Classification of matter. So on the basis of general observation, matter has been classified into different categories. This classification made the matters present around us and we compare their properties. So we focus on ourselves basically on two properties while classifying the matter. The property is that physical and chemical properties. So we can say that on the basis of properties, matter classified into two categories. One is that physical property, physical, and other is the chemical, chemical. Physical properties means it is based on that the changes occurs in the physical property that do not bring um, any change in their identity. This just only affects the physical properties of the matter. So, for example, on the basis of physical properties, on the basis of physical properties, matters are classified into three categories. That is basically based on the physical state. One is the solid, liquid, and gas. The physical property, what do we mean by the physical properties? Properties. The meaning of physical property is here. The meaning of physical properties is here. Those properties which cannot be measured or observed without changing their identity. Those properties which can be measured, those properties, here I will write, those properties which can be measured or observed without changing, without change in identity, identity, or we can say that composition, composition of substance. जिस ऐसी प्रॉपर्टी जब हम कोई भी ऑब्जर्वेशन करेंगे या कोई भी वर्क करेंगे किसी भी मैटर के साथ, तो
हम कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं किसी भी मैटर के ऊपर, तो उस ऑपरेशन के दौरान मैटर का जो आइडेंटिटी होता है वह चेंज नहीं होता है। तो हम कहते हैं कि यह जो भी ऑपरेशन अप्लाई किए वो फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर कंसीडर की जाती है। जैसे हम किसी भी मैटर पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो प्रेशर अप्लाई करने के दौरान उस मैटर जो है, अगर मान लो कि तुमने चौक लिया हुआ है, चौक का बेसिक कंपोजिशन कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर अगर प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, और जब हमने प्रेशर अप्लाई किया तो क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट एक बड़ा पीस जो है वह छोटे पीस में टूट सकता है, फोर्स जब अप्लाई करेंगे या प्रेशर, लेकिन यह क्रश हो सकता है। लेकिन प्रेशर अप्लाई करने के बाद हमें ऐसा कभी नहीं मिलेगा कि कैल्शियम कार्बोनेट का कंपोजिशन कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। इसकी आइडेंटिटी कंपोजिशन रिमेन्स सेम रहेगी। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं तो यह रिमेन्स कैल्शियम कार्बोनेट, then we call that it is physical property. तो boiling point, melting point, electrical conductivity, thermal conductivity, measure effect of heat, temperature, pressure, ये सारा कंसीडर किया जाता है फिजिकल प्रॉपर्टी। लेकिन कभी कभी जब हम हीट का एक्शन किसी मैटर पे देख रहे होते हैं तो उस दौरान वो क्या होता है, डिकम्पोज करके किसी दूसरे मैटर में बदल जाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर है, इसको अगर हम हीट करेंगे तो एक समय के बाद यह ब्रेक कर जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने हीट ऑपरेशन इस पे अप्लाई किया और हमने पाया कि कुछ समय के बाद यह कन्वर्ट हो गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, जो यह इंडिकेट करता है कि यह एक केमिकल चेंज है। बात समझ में आई कुछ? दिव्यांश? तो बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर हम मैटर्स को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो बेस्ड है उसके फिजिकल स्टेट पे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। दूसरी तरफ हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, और इसको हम कहते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, यह बेस्ड है केमिकल प्रॉपर्टीज पर। यह जनरली कहा जाता है केमिकल फिजिकल क्लासिफिकेशन, और इसको हम कहेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन कह सकते हैं। क्लासिफिकेशन तो the matter on the basis of their chemical property classified into different categories. Basically, this classification is based on the matter's composition present around us. There are whatever the matters present around us that may be present into 2 different forms. Either they present in the form of mixture, or they present in the form of pure substance. कोई भी अगर मैटर हमारे सामने रखा हुआ है तो वह मैटर या तो मिक्सचर होगा या तो प्योर सब्सटेंस। ये जो क्लासिफिकेशन हम कर किए हैं वह जनरल ऑब्जर्वेशन के आधार पर है। उसका हम जनरली ऑब्जर्व किए हैं सारे मैटर्स को, और उस आधार पर हमने यह पाया कि जो मैटर का केमिकल कंपोजिशन है
वह फिक्स होता है, लेकिन वह दो फॉर्म में रखता है, आइदर वह मिक्सचर में हो या प्योर सब्सटेंस के फॉर्म में। तो मिक्सचर को जब हमने बारीकी से स्टडी किया तो यहाँ पे दो बातें समझ में आई हमको। तो उस हिसाब से मिक्सचर को दो क्लास में डिफाइन किया गया। तो दो बातें निकल के यहाँ से आती हैं, वह यह है कि जो मिक्सचर होता है वह एक तो मिक्सचर होता है होमोजीनियस, होमोजीनियस, और दूसरा मिक्सचर जो होता है वह होता है हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस की खास बात यह होती है, होमोजीनियस की खास बात यह होती है यहाँ की, जैसा कि वर्ड में लिखा हुआ है, वर्ड में होमो एंड जीनियस दो वर्ड्स यहाँ पे। तो होमो इज होमो होमोजीनियस को हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। होमो मीन्स यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, एंड जीनियस मीन्स हियर स्पीसीज, स्पीसीज। बट यहाँ पर हम सेंस लेते हैं पार्टिकल से, पार्टिकल, और यू कैन सी दैट कंपोजिशन, कंपोजिशन। जब हम किसी भी मैटर को हमारे सामने सपोज करो कि यह हमारे सामने कोई भी मैटर रखा हुआ है, इस मैटर को जब हम देखते हैं, इस मैटर को जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि यह येलो कलर का पार्टिकल्स ही केवल दिख रहा है। लेकिन जब हम इसकी एनालिसिस करते हैं तो हम पाते हैं इस येलो कलर पार्टिकल्स में दो तरह के पार्टिकल्स इन्वॉल्व हैं, एक या पिंक कलर का पार्टिकल्स और दूसरा या ग्रीन कलर का पार्टिकल्स, लाइट ग्रीन। लेकिन यह दोनों मिक्स होने के बाद यह एक जैसे दिख रहे हैं। तो इस तरह के कंडीशंस को हम क्या करते हैं, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। यहाँ से यह बात याद रखना, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। जब कोई भी ऐसा मिक्सचर हो, हम अपनी कैसे देखेंगे, अपनी नेकेड आईज का यूज करके देखेंगे उस मिक्सचर को, नेकेड आईज का, और you can take a help of microscope also. In the both case, if the composition it looks like uniformly, in both conditions you can take the help of microscope also. In both conditions, if your mixture given substance look like all particles look like same, that we call that होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर को क्लासिफाई किया गया बस अपनी आंखों से देख करके और माइक्रोस्कोप की सहायता। ऐसा सैंपल आपके पास अगर रखा हुआ है जिसको आप अपनी आंखों से देख रहे हैं और आप को ऐसा लग रहा है कि यह केवल एक ही तरह का सब्सटेंस है, आप माइक्रोस्कोप की भी सहायता ले रहे हैं लेकिन आपको लग रहा है कि केवल यह एक ही प्रकार का सब्सटेंस है, ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। लेकिन क्या यह वास्तव में सही होता है? जब हम उस सब्सटेंस की एनालिसिस करते हैं तो हम पाते हैं कि जो हमारा जनरल ऑब्जर्वेशन था, जब हम जो चीज हम देख करके पता कर रहे थे, हमको लग रहा था कि यह यूनिफॉर्म मिक्सचर है, लेकिन ऐसा यह प्योर सब्सटेंस है, लेकिन ऐसा नहीं है, यह तो हमारा मिक्सचर निकला। तो उस तरह के मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स यहाँ पे ले लो, यह शुगर सोल्यूशन है, शुगर सोल्यूशन इन वाटर, इन वाटर। हमने एक शुगर, एक वाटर लिया, वाटर में शुगर मिला दिया या साल्ट मिला दिया, उस वाटर को आपके सामने रख दिया और मैं आपसे पूछूं कि इसमें बताओ क्या है, तो कैन यू टेल मी
what is the things are dissolved in a water? It is not possible until and unless you can taste, then you can tell. But through the naked eyes and with the help of microscope, we cannot tell that in the given liquids is a sugar or salt or only water. I hope homogeneous mixture you understood. Next is here heterogeneous mixture. Heterogeneous. So the word hetero indicates that non-uniform. Non-uniform. Non-uniforम का मतलब कि जब हम कोई मिक्सचर हमारे सामने कोई सैंपल रखा हुआ है मिक्सचर का और उसको हम जब देख रहे हैं तो पहला कंडीशन यह हुआ कि इसमें दो केस को हम जानेंगे। एक में हम जब उसको देख रहे हैं तो हमको देखते ही लग रहा है कि इसमें दो तरह के पार्टिकल्स इन्वॉल्व हैं, एक जैसे येलो दिख रहा है, एक पिंक दिख रहा है। यह देखते ही लग रहा है कि इसमें दो तरह का पार्टिकल्स इन्वॉल्व। जैसे पल्स ले लो और पल्स में स्टोन डाल दो, तो इस तरह का जो कंपोजिशन हमको दिख रहा है थ्रू आउट द मिक्सचर, इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यह कैसे हम प्रतीत कर पा रहे हैं? अपनी नंगी आंखों से, अपनी नंगी आंखों से देखते हैं। लेकिन कभी कभी केस ऐसा होता है कि जब हम अपनी नंगी आंखों से देखते हैं, नंगी आंखों से देखते हैं तो हमको सारी मिक्सचर जो मिक्सचर है उसमें थ्रू आउट द कंपोजिशन दैट्स लुक लाइक अ सेम, लुक लाइक अ सेम। जब हमने इस मिक्सचर को देखा तो हमको लगा कि इस मिक्सचर में केवल ग्रीन कलर के पार्टिकल्स हैं, लेकिन जब हमने यहाँ पर क्या लिया, माइक्रोस्कोप लिया, माइक्रोस्कोप की सहायता से जब इसको ऑब्जर्व किया तो हमने पाया कि नहीं, इसमें ग्रीन कलर के पार्टिकल के साथ साथ कुछ और पार्टिकल्स हैं, जैसे यह रेड पार्टिकल्स। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में दो तरह का केस हमने पाया। एक केस में हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर को सैंपल को हम देख करके जान लेते हैं कि इसमें केवल एक ही दो तरह के सबस्टेंस है, मोर देन वन टाइप्स ऑफ द सबस्टेंस present in a given sample. But in the second case, when we look through our naked eyes, then we can see, we confuse that, oh no, it's only one type of the substance. For example, best example is a milk. तो जब मिल्क को आप देखते हो तो कैसा दिखता है? व्हाइट कलर दिखता है और थ्रू आउट द कंपोजिशन सेम होता है। लेकिन जब हम उसको अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हम पाते हैं कि मिल्क के साथ साथ बहुत सारे पार्टिकल्स में डिजॉल्व है, उसमें मिले हो। तो हमने कहा कि नहीं, मिल्क तो मिक्सचर ही हो सकता है या प्योर सबस्टेंस नहीं हो सकता है। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारी आंखों से, नंगी आंखों से या माइक्रोस्कोप की सहायता से अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी सब सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्मली विजिबल हो रहा है तो हम उसको हेट्रोजीनियस में क्लासिफाई करते हैं और हेट्रोजीनियस में क्लासिफाई करते हैं। तो इस तरह से होमोजीनियस मिक्सचर में हमारा एक केस है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हमें दो केस मिलते हैं। आगे चल करके इसको हम जब सोल्यूशन के टर्म में क्लासिफाई करते हैं तो हमारे पास दो तरह के सोल्यूशन आते हैं। इसको हम कहते हैं सोल्यूशन और ट्रू सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन, ट्रू सोल्यूशन या एग्जैक्ट, जब हम सोल्यूशन की बात करते हैं तो हम होमोजीनियस मिक्सचर की बात करेंगे। तो दैट देन वी कैन डिफाइन द सोल्यूशन व्हिच वन solution is the homogeneous mixture of more than one kind of the substance. इस केस में, हेट्रोजीनियस के केस में, जिस
मिक्सचर को हम नंगी आंखों से डिफाइन कर लेते हैं, इसको हम कर सकते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन क्योंकि इनका पार्टिकल्स ट्रू सोल्यूशन को हम नंगी आंखों से या माइक्रोस्कोप से क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि इसका पार्टिकल साइज बहुत ही छोटा होता है। द पार्टिकल साइज आर वेरी स्मॉल and in the range of it is a less than particle size particle size less than particle size क्या लिख देते हैं इसका particles size less than 10 to the power -9 मीटर, जो कि हमारे नंगी आंखों से या माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल। आगे चलते हैं तो इसका जो सस्पेंशन का पार्टिकल्स है ये बहुत बड़े होते हैं और इनकी साइज जो होती है वो मोर देन 10 to the power -6 मीटर्स के रेंज में होती है। तो उसको हम जो भी पार्टिकल साइज अगर 10 to the power -6 मीटर से के रेंज में हो, बड़ा हो, तो उसको हम आराम से अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। कोलाइडल के केस में क्या होता है, इसकी पार्टिकल साइज बीच में होती है, ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन। इस तरह का जो मिक्सचर हमें मिलता है जिसको हम नंगी आंखों से देखने में लगता है कि दिस इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, बट व्हेन वी ऑब्जर्व थ्रू माइक्रोस्कोप देन वी कैन अंडरस्टैंड नो दिस इज अ नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। सो इस तरह के सब्सटेंस को हमने क्लासिफाई किया, एक नाम दिया कोलाइडल। कोलाइडल तो कोलाइडल के केस में, इन द केस ऑफ कोलाइडल, particle size in the range of 10 to the power -9 to 10 to the power -6 मीटर के रेंज में या बिलोंग करता है। अंडरस्टूड दीज पॉइंट्स दिव्यांश? दिव्यांश 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 Yes, sir. अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, तो हमें दो तरह का मिक्सचर हुआ और उस दो तरह को आगे हम सोल्यूशन के टर्म में अगर क्लासिफाई करते हैं तो हमें तीन तरह के सोल्यूशंस वी कैन से दैट obtained on the basis of size of the particles and general observation. The first is generally in our behavior life we pronounce it the solution only, but it is called the true solution, and other is the colloidal solution and suspension. अब आते हैं प्योर सबस्टेंस पे। प्योर सबस्टेंस का मतलब यह होता है कि जो भी सैंपल आपके सामने रखा हुआ है वह उस सैंपल में all particles must be identical। वह एक ही तरह के सारे पार्टिकल्स हों। जब भी हम उसको कैसे भी एनालिसिस करें और एनालिसिस के दौरान हमको केवल और केवल एक ही तरह के पार्टिकल्स मिले, इसका फिजिकल टेस्ट करें, केमिकल टेस्ट करें और सारे पार्टिकल्स को एनालिसिस करने के बाद जितने भी पार्टिकल्स रखे हुए हैं किसी भी वेसल्स में वो सारे पार्टिकल्स सेम है, आइडेंटिकल है,
their physical property, chemical property, then we call this is a pure substance. So the pure substance again further classified on the basis of their chemical composition. As we know that pure substance and whatever the substance is formed, that is formed by the elements. Element. Element is the basic form of matter. So the atoms of the elements combine and they form the different substance. इस केस में हम बेसिकली दो तरह के कंपोजिशन देखते हैं. एक तरह के कंपोजिशन में केवल जो एलिमेंट हम एलिमेंट कहते हैं, वी कॉल देम एलिमेंट बिकॉज ऑल द पार्टिकल्स आर मेड अप ऑफ अ पर्टिकुलर सबस्टेंस इज मेड अप ऑफ बाय द आइडेंटिकल एटम. बाय आइडेंटिकल एटम, तो उसको हम एलिमेंट नाम दिया. और दूसरा प्योर सबस्टेंस क्या होगा, जिसको हम कंपाउंड कहते हैं. कंपाउंड. कंपाउंड तो हमारे नेचर में मैटर एग्जिस्ट कर सकता है एलिमेंट के फॉर्म में. जैसे फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं आयरन रॉड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर, जिंक मेटल. तो यह क्या हो गया, प्योर फॉर्म, एलिमेंटल फॉर्म. लेकिन बहुत सारे सबस्टेंस जो एग्जिस्ट करते हैं अपने कंपाउंड फॉर्म में, जैसे वाटर H2. तो H2 इसमें वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एक डिफरेंट कंपोजिशन में कंबाइन है और डिफरेंट मास के रेशियो में कंबाइन है. तो इसको हम कहते हैं कि यह एक प्योर सबस्टेंस. इस सबस्टेंस की जब हम एनालिसिस करते हैं तो हम पाते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपना अलग अलग प्रॉपर्टी नहीं शो करते हैं, वह शो करते हैं एक अलग तरह की प्रॉपर्टी जिसको हम वाटर की प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं. एक एग्जांपल यहाँ पर मैं दे रहा हूँ. जैसे मान लो कि यह कोई बकेट है, वेसल्स है. इस वेसल्स में हमने हाइड्रोजन रखा और ऑक्सीजन रखा, दो तरह की गैसेस रखी. तो यह हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का मिक्सचर कहेंगे. लेकिन जब हम इसको जब केमिकल प्रोसेस के थ्रू यह कन्वर्ट हो जाएगी वाटर में, तो हम इसको प्योर सबस्टेंस कहेंगे. तो कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द combination of two or more than two atoms of the different element when they combine in a definite ratio by mass. So we call them compounds. We call them compounds. तो इस तरह से हमने एक क्लासिफिकेशन देखा. यहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस का डिफिनीशन देने की जरूरत है. दिव्यांश, सॉलिड लिक्विड गैस की डिफिनीशन की जरूरत है. वेरी कैन डिफाइन इट. Very close. Fact इसमें होगा constituent particles comparatively to solid less close और इसमें होगा constituent particles are far apart or far और क्योंकि सॉलिड के केस में
जो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स का वो बहुत स्ट्रांग होता है। लिक्विड के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द constituent particles are very strong. In case of liquid, the force of attraction of constituent particles is less than the solid, and in case of the gas, there are negligible force of attraction. The reason is that behind, in case of solid, the particles' energy is very less. They have the minimum energy, so they cannot move freely. In case of and bounded with each other closely with strong force of attraction. In case of liquids, the comparatively to solid, the particles energy is somewhat more, so they feel the less force of attraction with each another particles, and they are freely to move somewhat more than the solid particles. In case of a gas, their particles energy too high, so they feel the very less force of attraction, or what force of attraction present between the particles, they are able to break that force of attraction, and they can able to move freely. Uh, so this is the brief description about solid liquid gas. Now come to the elements and compounds. Little I will explore it. Element. On previous page, sir. Okay, sir. Okay, sir. Element. Now, elements is a pure form of matter. Now we know that till now we have 118 known elements. 118 known elements. Known elements. Why it is a pure? Because when you have a metal rod or non-metal elements, and when you will break it into small pieces, the small piece you will get, after that you cannot break that particles, that is called the atom. As we know that when we have a matter and keep on dividing the matter, at last the small particles whatever we get, that further cannot be divided, so that is called the atom. So these atoms uh, contains by a particular element that is commonly known as atom of the particular elements. For example, if this is a iron, so small particles of this iron is that iron atom. Iron atom. So this iron atoms combine together each other, and that is form a big block of the matter that is known as iron element. If suppose that copper atom combine together each other, they are linked together each other and form a big block of metals, copper metal, that is called the copper element. तो सबसे पहले टर्म एलिमेंट्स दिया गया रॉबर्ट बॉयल के द्वारा. टर्म एलिमेंट्स गिवन बाय रॉबर्ट बॉयल. और एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो जो डेफिनेशन सेट की गई
that is set by the Antoine Laurent de Lavoisier के द्वारा। एंटोine लॉरेंट डी लवेजियर ने एटम का डिफिनीशन सेट किया और इन्होंने बताया एंटोine लॉरेंट डी लवेजियर ने एलिमेंट्स का डिफिनीशन सेट किया और जो डिफिनीशन इन्होंने दिया वो टोटली बेस्ड था एक्सपेरिमेंटेशन पर। जो कुछ भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उसके आधार पर इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन एंड देन आफ्टर दैट इन्होंने एक डिफिनीशन कंक्लूजन निकाला और उस कंक्लूजन के आधार पर इन्होंने एक डिफिनीशन फिक्स किया। एंटोine लॉरेंट डी लवेजियर he deals with the different experimentation with different elements, and after that he got whatever the observation. On the basis of observation he concluded the something and he set one definition for elements. So what is the definition of the elements? How we can define the elements? Let us see. So elements is the basic form of matter. Element is the basic form of matter that cannot be broken down into another simpler form of matter by any physical or chemical means। जैसे आपके पास आयरन है तो आयरन को आपने ब्रेक करना शुरू किया तो केवल आयरन के एटम ही उससे मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आयरन को ब्रेक करने के बाद आपको गोल्ड का एटम मिले। बात समझ में आई? कॉपर को हीट करने के बाद कॉपर के ही एटम्स ब्रेक होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कॉपर को हीट किया या इलेक्ट्रिसिटी पास किया और कॉपर गोल्ड में बदल गया। बात समझ में आई? अब हम यहाँ पर दूसरा पार्ट इसका देखते हैं और दूसरा पार्ट यह है कंपाउंड। कंपाउंड्स को अगर हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं, when we classify the compounds, we have there are two different types of the compounds based on that their composition. One is that organic compound that is formed by the combination of only carbon atom. Another is the inorganic compound, except carbon atoms, whatever the substances present. For example, water is an inorganic compound, sodium chloride is an inorganic compound, but here the C6H12O6 glucose is an organic compound. The few exceptions we have in inorganic compounds, for example, carbonates, carbon dioxide is an inorganic compound. Now, the compounds, the definition of the compound is what? The compound is a substance which is formed by the combination of
atoms of the different elements in a definite ratio by mass. When we can define when more than one atoms of different elements combine together in a definite ratio by mass, they formed compound. They form compound. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल हम देखते हैं. एग्जाम्पल है हमारे पास जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन किए वाटर का, तो कंबाइनिंग रेशियो क्या हमेशा क्या होगी इस वाटर में, सेम होगी डेफिनेट रेशियो बाय मास. जैसे एटॉमिक मास होता है हाइड्रोजन का 1 यूनिफाइड, यहाँ पे 2 एटम इन्वॉल्व है तो भी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हमारे पास टोटल मास 2 यूनिफाइड हो गया. वाटर की कंपोजिशन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ से हमें पता चलता है कि एक वाटर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है. द वन वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन. सो वी कैन से दैट we can write it in such way. Oxygen, one atom. Atomic mass of oxygen is 16 unified. Then total mass 2 unified is to 16 unified. Now simplest ratio we have 1:8 by mass. So when the hydrogen and oxygen combine in the ratio of 1:8 by mass, they form the compound. So this is a one molecule of compound. बात समझ में आई? This is a one molecule of compound. Compound. इतनी बात समझ में आ गई? Yes. जैसे हम कहते हैं उसको प्योर सबस्टेंस कोई होता है, प्योर सबस्टेंस. तो उस प्योर सबस्टेंस में हमने पाया एक एलिमेंट हो गया और दूसरा कंपाउंड्स हो गया. तो उस प्योर सबस्टेंस का कंपोजिशन क्या होगा? कंपोजिशन क्या होगा? तो कंपोजिशन का मतलब कि वो प्योर सबस्टेंस बना कैसे होगा. तो जब हम किसी भी प्योर सबस्टेंस को ब्रेक्स करते हैं, जैसे एलिमेंट्स को ब्रेक करेंगे आप, तो आपको एक छोटा सा पार्टिकल्स मिलेगा जिसको हम कहते हैं एटम. जब कंपाउंड्स को हम ब्रेक करते हैं तो सबसे पहले एक स्टेप पे हमको 2 तरह के एलिमेंट मिलेंगे, 2 या मोर देन 2 टाइप्स ऑफ. मींस वी कैन से दैट different elements we will get, so that is A kind or B kind element, and again we will break the element A, then we will get the small particles. This is called atom of A. We will, on breaking the B, we will get the small particles. This is called the atom of B. जैसे यहाँ पे हम जैसे मान लो कि कोई कंपाउंड ए बी है, तो इस कंपाउंड ए बी को जब ब्रेक किया तो एक एलिमेंट ए मिला और दूसरा एलिमेंट बी मिला. एलिमेंट ए को जब हम छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करना शुरू किया तो सबसे छोटा पार्टिकल्स को मिला वह एटम ए का एटम रहा, और जो बी को डिवाइड किया तो छोटा पार्टिकल्स मिला वह बी का. इसको रियल एग्जांपल से समझ सकते हैं. जैसे आपके पास सोडियम क्लोराइड है,
तो सोडियम क्लोराइड या एक कंपाउंड है। सोडियम क्लोराइड को जब हम ब्रेक किए तो हम यहाँ से पाए दो तरह के एलिमेंट, एक एलिमेंट सोडियम हुआ और दूसरा एलिमेंट क्लोरीन। सोडियम को फिर हमने जब ब्रेक किया तो हमको मिला एक एटम मिला जो सबसे छोटा पार्टिकल्स था इस सोडियम मेटल्स के लार्ज पार्टिकल्स का, और जो एटम को हम क्या कहते हैं, सोडियम एटम। क्लोरीन के केस में जो छोटा पार्टिकल्स मिला इसको कहा गया क्लोरीन एटम, क्लोरीन एटम। तो बेसिकली जितने भी मैटर होते हैं वो एटम से ही कंपोज होते हैं, लेकिन जब एटम्स को से कंपोज होते हैं तो उनको हम डिफरेंट टर्म से जानते हैं। तो वह टर्म क्या है, तो यहाँ पे तो टर्म यूज करते हैं हम बेसिकली तीन तरह के टर्म यूज करेंगे। एक एटम यूज करेंगे, दूसरा मॉलिक्यूल यूज करेंगे, और तीसरा कंपाउंड यूज करेंगे। तो वी हैव द थ्री टाइप्स ऑफ द कंपोजिशन। अब देखो एटम, एटम का डिफिनीशन क्या होगा, तो एटम को डिफाइन करते हैं, एटम में और may not be exist in nature। जैसे एग्जाम्पल, हाइड्रोजन का एटम एग्जिस्ट नहीं करता है, वहीं हीलियम का वन एटम एग्जिस्ट करता है। मॉलिक्यूल के केस में क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट इन नेचर। तो यहाँ पे बात आई कि मॉलिक्यूल्स बनता कैसे। मॉलिक्यूल्स बनता कैसे, तो हमारे पास दो तरह के कॉन्सेप्ट हैं। मॉलिक्यूल्स दो तरह से बनता है। पहला तरीका है यहाँ पर कि जब एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइन करें, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइन, तो उसको हमने नाम दिया मॉलिक्यूल ऑफ एटम, सॉरी मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। Atoms of same element combined, that is called the molecule of element। That is called the molecules of element। Molecules of element। ये बात समझ में आई। दूसरा केस यहाँ पर हमारा है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन। तो जब एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो वह रिजल्ट करते हैं कंपाउंड्स। तो इसलिए इसको कहते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। इस केस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स के केस में जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन किया तो यह बनाया H2, तो यह मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है। IO2 मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है। N2 मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है। हीलियम यह मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है। तो हीलियम वन एटम भी कर सकते हैं इसको और वन मॉलिक्यूल कर सकते हैं। हाइड्रोजन के केस में यह दो एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो एटम्स कितने हुए, दो हुए,
और मॉलिक्यूल कितना हुआ, एक हुआ। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड के केस में जब हम देखते हैं कार्बन और प्लस ऑक्सीजन दोनों कंबाइन करते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं, तो यह क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यह बात समझ में आई, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, और यही मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं प्योर फॉर्म के रूप। बात समझ में आई? Yes, sir. कंपाउंड का कंडीशन क्या है, मोर देन वन एटम, but the atoms come from different element and they combine in the definite ratio by, यहाँ पे एक छोटा सा कैलकुलेशन मेथड हम दे दे रहे हैं। वो कैलकुलेशन मेथड क्या है, जैसे यहाँ पे अगर लिखा हुआ है CaCO3, तो पहली बात यह एक आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड को हम फार्मूला यूनिट कहते हैं। यह मॉलिक्यूल जनरली इन द सेंस यूज होता है, लेकिन इसको कहने का तरीका क्या है, यह फार्मूला यूनिट है। जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वहां पे हम टर्म, एक स्पेशल टर्म यूज करते हैं, फार्मूला यूनिट। क्यों फार्मूला यूनिट करते हैं उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड कोई कोवैलेंट कंपाउंड है, इसको हम मॉलिक्यूल, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे हमने लिखा H2 लिखा, यहाँ पे हमने लिखा P4 लिखा, तो इसका कैलकुलेशन मेथड हम कैसे करें। अब यहाँ पे प्रीफिक्स क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट के पहले कुछ नहीं है, तो हम कहेंगे एक फार्मूला यूनिट है, इट इज वन फार्मूला यूनिट। कार्बन डाइऑक्साइड के पहले अगर हम 2 लगा देते हैं तो हम कहेंगे इसको 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन तो ये क्या है, यह वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। 2 एटम ऑफ, एटम के अंदर में क्या कहेंगे, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन। आज इतना ही रहने देते हैं, थैंक्स। Wait, sir. Previous page you open. Okay, sir. Okay, bye, sir.